Dear students, now we will move towards the third type of economy in this lecture, that is mixed economy. Mixed economy is observed in India. It has unique characteristics and this is adopted by India first time. Okay. Now in other countries also it is observed nowadays, but this is adopted in India first time. Mixed economy, as its name suggests, that mixed economy is a mixture of two types of economies that we have uh, listened earlier, or we have learned about them earlier in my last lectures. Students, mixed economy is having characteristics of both the economies that we have read earlier: free economy, that is market economy, and centrally planned economy. Okay, means free economy, characteristics of free economy and centrally planned economy are observed in mixed economy. Okay, it is a mixture of both type of economies. Then students, obviously it has all odds, means all pros and cons of two of those economies. Okay, economic factors are owned by both sectors, government and private. Means some of the important sectors are handled or owned by government, and other type of sectors that are less dominated, or I do not want to say those are not important sectors. Private sector also has ownership right of sometimes such types of factors of production. Means whether those factors of production are man-made or not, means physical factors. Both of these sectors have their ownership right on such type of sectors, but more dominance is given to the center government. Okay, center government of India has dominating all these resources, but no doubt private sector has its all vital role here. Social welfare and profit maximization is its motive. You have observed that social welfare is adopted as main motive by centrally planned economy, and profit maximization is observed by free economy. But now in this economy both of these motives are running simultaneously. Okay, consumer is sovereign but not as in free economy. Okay students, consumer here is independent but not as much independent as it is in free economy. Okay, so uh, goods and services are produced according to the preferences of consumer, but sometimes if government finds it is not benefit for the mass level of consumers, it can be banned. For example, uh, production of tobacco, it is not benefit for whole of the people, so this is banned in economy in some extent. Okay, such type of characteristics are found uniquely in this economy, that is mixed economy. Students, collective decisions are taken. Collective decisions means decisions regarding economic activities are taken collectively, both by the government and the private sector, sometimes independently, sometimes collectively. Okay, sometimes private sector is free to take their own decisions. Mean private personas, private producers can take their own decision regarding problems of economy. Then students, it is controlled play of market forces is observed here. What is controlled play of market forces? Market forces means those forces that are playing their role or a key role in price fixation of goods and services, that are demand and supply forces.
all types of goods price is fixed by the free play of forces, demand and supply, that are called forces. Okay, these are the tools that equalize the price, balance the market. But here these no doubt these market forces are free to play their role, but if government find it is unjust, full price is fixed by the market, it can control by making its own policies on them. Okay, for example, MSP that is given to the farmers, etc., is fixed by the government beyond the market forces. Means whatever the price is fixed by the market forces is controlled itself by the government. You find it very easy. What is mixed economy? It is a mixture of both the economies. So all types of characteristics can be seen in this economy that we have observed in prior discussed economies. Okay students, welcome students. अब मैं आपके सामने इसी चीज का सिंपल लैंग्वेज वर्जन लेके आ रही हूँ, मीन्स हिंदी वर्जन लेके आ रही हूँ। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो इंडिया में पहली बार पाई गई थी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही इकोनॉमीज जो हमने पहले डिस्कस करी हैं, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाए जाते हैं। यानी कि दोनों इकोनॉमीज के जो फीचर्स हैं इस इकोनॉमी में देखने को हमें मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इस इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यानी कि जितने भी चाहे मैन मेड हैं रिसोर्सेज, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हवा, पानी, मिनरल्स, जितनी भी चीजें हैं, सब के ऊपर दोनों का अधिकार होता है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट पर्सनल्स का भी। बट यहाँ पे याद आपने ये रखना है कि अपने कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेज अ डोमिनेटिंग रोल। नो डाउट प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है यहाँ पे, बट फिर भी सेंट्रल अथॉरिटी इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, वो ऐसे ऑनरशिप राइट पे थोड़ा सा पार्शियलिटी करती है इसमें। मींस प्राइवेट सेक्टर्स को वो सारे ऑनरशिप राइट्स दिए जाते हैं जो मास लेवल पे जितनी भी चीजें चाहिए उनके लिए दिए जाने चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि एम्यूनिशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार है। ओके, ऐसे ही जैसे वारफेयर के लिए जो भी चीजें बनती हैं या जो भी सेल एंड परचेज होती है, चाहे बाहर से हुई है, किसी और कंट्री से हुई है, चाहे अपने कंट्री से हुई है, ऐसी सारी चीजें, जैसे रेलवे है, ऐसे सारे जो भी सेक्टर्स हैं जो इनको लगता है कि हाँ यस ये मतलब मास लेवल पे प्राइवेट सेक्टर को देने लायक नहीं है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार होता है। इसमें दोनों ही मोटिव्स होते हैं, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है अपना, और जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर करती रहेगी। तो दोनों ही मोटिव इसमें फुलफिल हो जाते हैं, दोनों ही मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य था गवर्नमेंट को इकोनॉमी को चलाने का, वो पूरा किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इज सोवरन, मतलब कंज्यूमर यहाँ पर भी देखता है बट उतना नहीं जितना कि फ्री इकोनॉमी में था। ओके, यहाँ पे कंज्यूमर की एक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाता है। मास लेवल पे अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हार्मफुल है, सबके लिए कोई जरूरी नहीं है, तो उसमें इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को खराब नहीं करती, यानी कि रिसोर्सेज को कंज्यूम करने से गुरेज करती है। तो इकोनॉमी क्या करेगी फिर उसमें, मीन्स उन चीजों को कट कर दिया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी तंबाकू की, नो डाउट तंबाकू प्रोडक्शन हो रहा है अपने कंट्री में, बट फिर भी कुछ एक्सटेंट तक है, बाकी उसको बैन कर दिया गया है। ओके, तो कलेक्टिव डिसीजंस आर टेकन, मतलब जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, क्या पैदा करना है, कितना, कैसे, है ना, इस टाइप के सारे डिसीजंस दोनों मिलकर ले सकते हैं। मतलब जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है दोनों कलेक्टिवली भी ले सकते हैं और इंडिपेंडेंटली भी। गवर्नमेंट के जो सेक्टर है, जो गवर्नमेंट के प्रोडक्शन हाउस है, गवर्नमेंट उनका डिसीजन लेगी, और जो दूसरे अपने प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं जो, तो प्राइवेट सेक्टर उनके लिए अपने आप डिसीजन भी ले सकता है। ओके, देन
जो भी इसमें प्राइस फिक्सेशन का काम है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस फिक्स होता है स्टूडेंट्स, वो सारा प्राइस कौन फिक्स करता है? तो अकेली गवर्नमेंट नहीं करती, करती यहाँ पे मार्केट ही है। बट जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीजें कुछ लोगों की रीच में से बाहर निकल जाएंगी, लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगी हैं, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना कंट्रोल दिखाता है, मतलब प्राइस को फिक्स होने देता है। पहले जितनी भी प्राइस मार्केट में फिक्स हो जाती है, फिर उसको गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करके फिक्स करने की कोशिश करती है। जैसे मैंने बताया था कि किसानों को समर्थन मूल्य देना अपने अनाज के लिए, मार्केट ने तो उनके अनाज की कम वैल्यू फिक्स करी थी, फिर किसान कुछ अपने हकों के लिए चेतन होते हैं और कुछ गवर्नमेंट उनकी वेलफेयर के बारे में सोच के एमएसपी अपनी तरफ से यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खुद फिक्स कर देती है। तो ऐसे में जितने भी डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? नो डाउट मार्केट फोर्सेस के द्वारा, बट उसको कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखो कितना यूनिक सिस्टम है ये मिक्स्ड इकोनॉमी वाला। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी जो आज का लेक्चर था मैंने पीछे लिया था कि व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो उसका रिलेटेड है, वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहाँ पैदा होती हैं और कौन कौन सी इकोनॉमीज को कैसे कैसे हैंडल करती है, ये बहुत जरूरी था कि आपको पता चले कि अलग अलग टाइप की इकोनॉमीज कैसी हैं। आई होप आपको तीनों तरह की इकोनॉमीज के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा। मिलती हूँ मैं बहुत जल्द आपको चैप्टर नंबर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियो में। तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस ऐसे एंजॉय करते रहिए।